Can we do it? Hello everyone, this is me Ananya and welcome to the Daily Discourse podcast with J Connect. Today we have a very special guest with us जिन्होंने ना सिर्फ अपने बिजनेस वेंचर से अपनी सक्सेस स्टोरी लिखी है बल्कि अपने सोशल इनिशिएटिव से लोगों की लाइफ में भी एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया है. So today I take this opportunity to invite Astha Verma on the show. Welcome to the show, Astha. So how are you feeling today? Thank you so much for inviting me, and it is very exciting to be here. Okay, sure. So I'm also very excited and looking forward for having great conversation with you today. So Astha, can you please give some explanation or introduction about your work or the business that you do और आप क्या social work करती हैं? हमारे audience को कुछ बताइए please. Okay, so I don't understand where to start from. अगर मैं पूरा एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करूँ तो इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम अमानत फाउंडेशन. दैट इज़ माई NGO, जहाँ पे वी आर ट्राइंग टू हेल्प रूरल फीमेल्स फॉर देयर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट. We are also focusing on their hygiene, like the menstrual hygiene part of them, जिस पे हम काफ़ी सारी females के साथ में still we are working. And अगर employment की बात करें तो we have given employment to 54 females, rural females till That's now. great. And we started from an NGO, but soon हमें समझ में आया कि it is not very easy to survive with an NGO क्योंकि हमें वहाँ से कोई earning नहीं हो रही. We are even investing our time and our money both. So we started, like me and my co-founder started this company by the name Prasiddhi PR. It's a marketing and advertising agency situated in Raipur, but still we are working with pan-India and worldwide clients. And touch wood, it is going very good. But soon I realized one thing about business, because I'm not from business background. My parents, कि अगर मैं अपने parents की बात करूँ तो they are from government job background. मेरे पूरे खानदान में मोस्टली लोग जॉब में हैं, तो इट वॉज वेरी न्यू टू मी एंड फॉर माई को फाउंडर एज वेल. शुरू में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, हाउ टू डू डॉक्यूमेंटेशन, टैक्सेशन. टैक्स तो बिल्कुल समझ नहीं आता था स्टिल, बिकॉज आई एम फ्रॉम बायोलॉजी बैकग्राउंड. मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी. एंड जैसे जैसे मैंने लोगों से बात करना चालू की, आई अंडरस्टूड वन थिंग, स्पेशली विद फीमेल, दैट this is the problem when they are asking such questions to people. They are judging them like बहुत easy नहीं हो रहा है ये सारी चीज़ें समझ पाना और इसको solve कर पाना. So we created this community called Women Web, where mostly female founders are there, and we are solving these problems. Like you can ask anything to anyone without any hesitation, and we call it, this is a circle of females where everyone is standing behind everyone, so that if someone is falling apart, everyone can catch them out, कि मतलब कोई गिर ना सके. तो हम एक दूसरे का हाथ थामे खड़े हैं. And these are the three ventures I should say जो हम अभी grow कर रहे हैं. And touchwood, आगे क्या आता है देखते हैं. That's so amazing. The work, the efforts you're putting is really very much Thank you like so commendable. बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगता है ऐसे लोगों से मिलना, ऐसे लोगों से बात करना, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है. तो इस जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मतलब when was the moment you realized that you want to create something of your own self? और आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली इसकी? See, out of nowhere मैंने I don't know how did I come to this way. शुरू से ही वो जो होता था ना स्कूल में, आपको क्या बनना है, आगे जाके क्या करना है, तो कभी IAS ऑफिसर, कभी डॉक्टर. मतलब आई हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई माइंड. ऑल द डॉक्टर की राह में मैं बहुत दिन तक चली हूँ. मतलब आई हैड अपीयर्ड इन सो मैनी एग्जाम्स, सम ऑफ देम आई हैव क्लियर्ड एज वेल. बट कहीं ना कहीं ये था कि आई वॉन्ट टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट्स. मतलब ये शुरू से रहा है कि ऐसा कुछ करना है कि और भी लोग मेरी वजह से कुछ कर पाएँ. सो व्हेन आई वाज हियर इन रायपुर, मैं अपने ग्रेजुएशन के लिए आई थी. आई स्टार्टेड वर्किंग एज फ्रीलांसर एंड पार्ट टाइम जॉब्स. उस वक्त व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग, आई थॉट अर्निंग इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेटमेंट. आई वाज सेइंग कि आपके पास अगर पैसे है तो यू आर सॉल्विंग एनीथिंग दैट यू आर फेसिंग राइट नाउ. मतलब दैट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, नॉट इमोशनल वंस. सो तब मुझे रियलाइज हुआ, इफ समवन इज अर्निंग बाय देयर ओन, दैट इज़ अ डिफरेंट फीलिंग. एंड दैट टाइम I was doing so many events, including like some of the open mics and some entertainment events. उस वक्त में जब मैं लोगों से मिलती थी तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बाहर से आ रहे हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम टियर
3 cities, 4 cities, towns. So उनके पास बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस नहीं होती थी. They are not coming after like 6 p.m. 7 p.m. बात करने से यही समझ में आता था कि द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दे आर नॉट अर्निंग एनीथिंग. सो उनके पास में बहुत ज़्यादा प्रेशर है. दे आर नॉट प्रूविंग देयर सेल्स. तो वी डिसाइडेड लेट्स क्रिएट समथिंग जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ हो और ऐसे लोग जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ या जॉब्स प्रोवाइड कर पाए. एंड आई वॉज ऑलरेडी इन टू राइटिंग फील्ड एंड ऑल, जिसमें मेरा पेन नेम हुआ करता था अमानत. एंड वी केम अप विद दिस आइडिया अमानत फाउंडेशन, दैट इज़ माई NGO, कि चलो यहाँ से हम रूरल फीमेल्स के लिए कुछ जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट कर पाएँ. जैसे ही हमने सोचा लॉकडाउन पीरियड आ गया एंड लॉकडाउन में ही वी कनेक्टेड विद सो मैनी फीमेल्स रूरल जो होती थी उनके साथ में. एंड हमने वर्कशॉप्स अरेंज कराए कि उनको घर बैठे कुछ सिखाया जाए. दे वर वेरी मच इंटरेस्टेड इन आर्ट एंड क्राफ्ट. तो हमने विद डिफरेंट फैशन डिज़ाइनर्स उनके लिए वर्कशॉप अरेंज किए और उन्हीं फैशन डिज़ाइनर्स के साथ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट की. वहाँ से थोड़ा पावर है, नहीं वी कैन डू समथिंग. एंड इट वाज लॉकडाउन पीरियड, सब लोग घर में बैठे हुए थे, बहुत सारा वक्त होता था सबके पास में. तो लोग एंटरटेन भी करते थे उस वक्त क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ नहीं चल रही थी. उसके बाद में हमें लगा कि चीज़ें अच्छी जा रही थी, बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिल रही थी. जॉब इट इज़ नॉट रियली जॉब बट एटलीस्ट उनको 4-5 हज़ार मंथली हाथ में आ रहे थे. मुझे बहुत प्राउड फील होता था बट मेरे हाथ में कुछ नहीं आ रहा था. इट वॉज लाइक कि हाँ वो फैशन डिज़ाइनर्स डायरेक्ट वो फीमेल्स को पे कर रहे हैं. आई वॉज हैप्पी, ये खुशी बहुत अच्छी थी बट आई वॉज नॉट अर्निंग. बट जब मैं जॉब कर रही थी इन माई ग्रेजुएशन डेज, तो मैं कॉपी राइटिंग करती थी, मार्केटिंग में आई वॉज ऑलरेडी देयर. मैंने कुछ कोर्सेज ऑनलाइन किए हुए थे. सो आई एंड माई को फाउंडर हु वॉज ऑलरेडी इन टू डिज़ाइनिंग एंड विजुअल पार्ट, वी डिसाइडेड लेट्स ब्रिंग अप समथिंग. विल बी सीइंग अगर आगे ग्रो कर रहा है तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे. हमने जैसे ही अनाउंस किया हमारी कंपनी प्रसिद्धि PR, हमें विद इन 16 days एक क्लाइंट मिला. इट वॉज फ्रॉम छत्तीसगढ़ इटसेल्फ बट इट वॉज अ बिगर अपॉर्चुनिटी फॉर अस. वी प्रूव्ड और हमें उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए. तो हमें बहुत ज़्यादा पावर मिली कि नहीं वी कैन एक्चुअली डू समथिंग. व्हेन वी केम बैक टू रायपुर हमने डिसाइड किया लेट्स बिल्ड अ टीम, हम ऑफिस लेते हैं एंड ऑल. तो इट्स बीन 6 years, हमारी कंपनी को 6 साल हो चुके हैं. एंड वी आर हैविंग दिस टीम ऑफ 23 brilliant minds here in रायपुर itself. एंड टच वुड इट इज़ गोइंग गुड. अभी हमारे पास में नेशनल क्लाइंट्स हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं. फिर वुमेन वेब जैसा मैंने ऑलरेडी बताया, उसका एक आइडिया आया. तो वी डू सेवरल इवेंट्स इन टू इट जिसमें हम लोगों के लिए वर्कशॉप्स अरेंज करते हैं. इफ़ आई डू नॉट नो टैक्सेशन, वाई नॉट टू अरेंज अ वर्कशॉप जिसमें कोई आके हमें टैक्सेशन सिखाए और जितनी भी फीमेल्स है उस चीज़ को लेके अपने घर जा सके एंड दे कैन अप्लाई इन टू देयर बिजनेस. बिकॉज एवरी वन कैन नॉट हैव देयर अकाउंटिंग टीम अलग से. एंड ये एक हो गया जो हम एक्सेल के नाम से करते हैं, दैट इज़ एक्स्ट्रा लर्निंग, नॉट द साइज एक्सेल. एंड इसके बाद में वी हैव दिस वर्टिकल कॉल्ड स्पीक आउट इनटू वुमेन वेब, जिसमें हम ऐसे बैठते हैं एंड वी स्टार्ट टॉकिंग फ्रॉम nail cutter to airplane. Like you will be seeing multiple minds speaking about multiple things. We decide one problem that we need to solve but in very casual way. We do not keep it very formal, so that if someone is getting emotional we can help her emotionally. Then there is one Elysian meet where we arrange founders meet of especially of female founders. We share businesses, we share ideas, we help each other to grow, we tell about our target audience, we try to connect each other with their target audience. And then there is one bigger event जो हम साल में एक बार ही करते हैं. 150 से 200 फीमेल entrepreneurs ज्वाइन करते हैं हमें. And this is how it is going. So this was my journey from starting when I was 18 years old. We are doing continuously something. Oh, that's so amazing to know. और मैंने देखा है जनरली लोग अपने करियर पे फोकस करते हैं, अपने ग्रोथ पे फोकस करते हैं, बट देयर इज बहुत कम लोग हैं जो दूसरों के लिए सोचते हैं. और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना इज अ ह्यूज थिंग एंड दैट टू एट दिस मिनिमल एज यू आर डूइंग. इट्स रियली वेरी वेरी लाइक अमेजिंग थिंग. Thank you so much. सो आपने बहुत सारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ भी काम किया है. तो व्हाट डू यू थिंक दैट द मेजर चैलेंजेस दे आर फेसिंग इन दिस वर्ल्ड इन दिस टाइम, और उनको कैसे आप टैकल करने के लिए एडवाइस क्या दे सकती हैं? See, एडवाइस क्या ही दूँ, इवन आई एम फेसिंग द सेम प्रॉब्लम्स जो अभी मैं बताने वाली हूँ. देर इज़ वन एक्सेप्टेंस गैप. सी आपने शुरू से देखा है पेट्रियार्की. आई एम नॉट गोइंग अपोजिट इट बट समवेयर
जितने बाहर लोग काम कर रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि 35-40% आर ओनली फीमेल, वो भी अब जाके, मतलब इट्स 2026 राइट नाउ। बट अगर शुरू से हम देखें तो सारे जो मेल जनरेशन है उन्हीं ने काम किया है। हम जब बीइंग अ फीमेल एंटरप्रेन्योर, हम जब सोसाइटी में आते हैं, दे डू नॉट एक्सेप्ट। आई हैव फेस दैट मैनी टाइम्स। इवन मतलब आज भी ऐसी कई सिचुएशंस होती है व्हेन आई फील कि यार यू आर इन 2026 एंड यू आर सेइंग सच थिंग्स टू मी। एक्सेप्टेंस बीइंग फीमेल भी नहीं होती है एंड बीइंग इन दिस एज भी नहीं होती है। पीपल से तुम बच्चे हो। No, we are not. Like, it's been 6 years, we are earning empty amount, we are giving salaries to this much people. So try to understand we are doing something that is creating change in the community, in the society. And सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है इस चीज़ से लड़ने में, दैट इज़ एट आवर ओन होम्स। क्योंकि आफ्टर अ सर्टेन एज, आई वुड बी सेइंग आफ्टर 25, वी आर प्रेशराइज्ड टू बी सेटल्ड. And I never understood what is the definition of settlement. Like, मेरे हिसाब से settlement is earning good amount, having your own house, having your own vehicle. This is for me settlement. But the society has their own norms, and who decided that कि क्या होना चाहिए settlement. मतलब सबकी language में, सबके definition में settlement is different thing. इस चीज़ के लिए अभी ऑलरेडी आई एम फेसिंग थिंग्स, बट एक ही चीज़ जो मैं सबको बोलती हूँ, जो मैं खुद के लिए भी अप्लाई कर रही हूँ, दैट डू नॉट क्विट। बिकॉज समवेयर आपने क्या सोच के चालू किया था हैज़ अ बिगर एम्बिशन एंड मोटो इन योर लाइफ, देन लोग क्या बोलते हैं, आपकी फैमिली क्या बोलती है, क्योंकि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड आपके पास में सिर्फ आप बचने वाले हो। देयर विल बी नो वन जो आपको हेल्प करने वाले इन योर लाइफ, इन योर ग्रोथ, इन योर सक्सेस। अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो तो देयर इज़ नो वे यू विल बी आस्किंग फॉर एनी थिंग एंड समवन विल बी कमिंग। आपने खुद देखा होगा, आप जब सक्सेसफुल होते हो आपके पास में बहुत सारे लोगों का कॉल आता है कि आपको ये काम है, ये करना है, वो करना है, एंड यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। बट व्हेन यू आर इन प्रॉब्लम आपके पास कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है। एक्चुअल में आपको नहीं मिलता है कोई कॉन्टैक्ट। समटाइम्स इट हैपन्स कि देर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स दैट यू कैन नॉट इवन शेयर विद योर पेरेंट्स, क्योंकि उनको लगेगा कि कहीं मैं फंस तो नहीं गई हूँ। बीइंग अ फीमेल ये सबसे बड़ा उनके मन में डर होता है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें काउंट करनी होती है व्हेन इट इज़ कमिंग टू द एक्सेप्टेंस एंड द इंडिपेंडेंस प्रॉब्लम। आई से इट इज़ अ प्रॉब्लम राइट नाउ इन इंडिया स्पेशली, क्योंकि इंडिपेंडेंस अच्छी लगती है सबको जब तक हमारे साथ में वो रूल्स एंड रेगुलेशंस चल रहे होते हैं। वंस आई स्टार्ट डिसाइडिंग ऑल द थिंग्स, वो थोड़ा सा अगेंस्ट होने लगती है, सोसाइटी अगेंस्ट होने लगती है, इवन योर ओन फैमिली गोज अगेंस्ट यू। तो ये चीज़ें हैं जो अभी की फीमेल्स फेस कर रही हैं। एंड यंग फीमेल्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स हु आर कमिंग इनटू बिजनेस आर कमिंग अप विद ज़ीरो नॉलेज ऑफ बिजनेस, तो उनको वो प्रूव करने में और ज़्यादा टाइम लगता है अगर वो बिजनेस फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें मैंने अभी तक फेस की हैं एंड सॉल्यूशन एक ही है, डू नॉट क्विट। एक ना एक दिन आप प्रूव कर लोगे। Absolutely, I agree to your words 110%, क्योंकि दिस इज़ अ मेल ड्रिवन सोसाइटी और पेट्रियार्की इतना ज़्यादा कॉमन है और इतना ज़्यादा कंडीशनली फेड है सबको कि लोगों को वो चीज़ बहुत ही कॉमन और बहुत ही नॉर्मल लगता है। अगर पेट्रियार्की के अगेंस्ट कोई मूव करता है तो उनको वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी लगता है, और अगर इंडिपेंडेंस किसी लड़की ने हासिल कर ली तो उसके पास वो सबसे बड़ा वेपन हो जाएगा पेट्रियार्की के लिए, जिससे लोग डरते हैं। ट्रू। मुझे ऐसा लगता है एट सम पॉइंट इन टाइम इन माई लाइफ ऑल्सो आई हैव सीन कि विमेन भी हैं जो कि पेट्रियार्की को ड्राइव कर रही हैं हमारे कंट्री में। एक्चुअल में मतलब यू विल बी सीइंग एट ऑल द वेडिंग्स जो घर में होती है। एग्जैक्टली, या सो दैट इज मोर स्कैरियर, क्योंकि उनको भी वैसी मेंटल कंडीशनिंग स्टार्टिंग से मिली हुई है। आई डोंट थिंक सो कि मेन आर दैट मच बॉदर्ड कि विमेन क्या कर रही हैं, जितना कि more than women are bothered. Yes, exactly. So giving platform to such women जिनको अपॉर्चुनिटी मिले अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए, सोसाइटी के नॉर्म्स को मोल्ड करने के लिए, दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग दैट यू आर पुटिंग फोर्थ इनटू दिस सोसाइटी। सो प्लेटफॉर्म देना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो दैट इज़ वेरी नाइस। आपने रूरल वुमेन के साथ भी काम किया है, तो आपने ग्राउंड लेवल पे जब काम किया होगा तो यू माइट हैव केम अक्रॉस वेरियस इंस्पिरेशनल रियल लाइफ स्टोरीज अराउंड यू। सो वुड यू माइंड शेयरिंग अ स्टोरी विद अस?
Sure, there is one. Like there are many, but एक मैं बताना चाहूँगी. There was one female. वो अपने ससुराल से बहुत ज़्यादा परेशान थी बिकॉज उनकी दूसरी जो हुई थी वो भी बेटी थी. लाइक शी हैड 2 गर्ल चिल्ड्रन. सो उनके साथ में ये बहुत बड़ी दिक्कत हो रही थी कि ससुराल वाले परेशान करे, बट सबसे बड़ी दिक्कत थी कि हस्बैंड भी ससुराल वाले का साथ दे रहे. सी बीइंग इन दिस जनरेशन वी नो बेटी होना या बेटा होना फीमेल के बस में नहीं होता है. देयर आर जीन्स. आई एम फ्रॉम बायोलॉजी बैकग्राउंड. वो तो बहुत ज़्यादा खून खोलने लगता है ये सब सुन के. तो वो जब ये सब फेस कर रही थी, ऑल्दो वो घर से भी बहुत सी चीज़ें करने की कोशिश कर रही थी जो होम ग्रोन बिजनेस होते हैं, जो बड़ी बिजौरी बनाना, ये सारी चीज़ें, पापड़ बना के बेचना, बट समवे वो एक बहुत छोटा बिजनेस माना जा रहा था. मतलब बिजनेस नहीं, उनकी अर्निंग 2-2.5 हज़ार, मतलब रॉ मटेरियल हटा के जो बचता था वो उतना ही था. तो उनको ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि क्या करूँ, कैसा करूँ. धीरे धीरे वो वॉलेंस में उतर आए थे कि मतलब नाउ उनको घर में डांट भी पड़ रही है, मार भी पड़ रही है. मतलब ऐसा भी हुआ है कई बार रात में उन्होंने कॉल किया कि दिस इज़ हैपनिंग विद मी, आपको अगर कोई पुलिस का कनेक्शन है तो ये बताओ, वो बताओ. मतलब बहुत सी चीज़ें हो रही थी उस वक्त. इवन आई वॉज अफ्रेड कि हाउ कैन समवन बी सो क्रूअल टू अ फीमेल, उनकी खुद की बहू. ये सारी चीज़ें हो रही थी. बट धीरे धीरे, सी आई वॉज वेरी यंग दैट टाइम. 21-22 साल की मेरी एज थी. मैं बस उनको एक तरीके से ना समझा, मतलब क्या ही समझाती मैं उस वक्त. मैं बस यही बोल पाती थी कि सी आई विल बी ट्राइंग टू डू समथिंग बट आई कैन नॉट हेल्प कम्प्लीटली. मैंने कुछ लोगों से बात भी की इसके बारे में, जो फीमेल कॉप्स वगैरह के बारे में पता चला, तो आई कुड कनेक्ट देम. बट वही फिर सोसाइटी बीच में आती है, सारा ये सब होता है. मैंने उनसे एक बार छोटा सा क्वेश्चन किया था कि आप डिवोर्स क्यों नहीं ले लेते, तो शी वॉज लाइक स्पीचलेस. कुछ नहीं बोला उन्होंने. बट विद इन टाइम जब वो धीरे धीरे हमारे साथ काम करने लगी और थोड़ी उनकी अर्निंग होने लगी, 4-5 हज़ार, 7 हज़ार, 10 हज़ार मंथली वो जब कमाने लगी, तो शी डिसाइडेड, पहले तो वो मायके चले गई अपनी दोनों बेटियों को लेके, एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स शी डिसाइडेड टू टेक डिवोर्स फ्रॉम दैट गाय, हर हस्बैंड इटसेल्फ. And that moment I was shocked and I was happy. It was totally mix of emotions कि भाई, मतलब मैंने बोला कहीं मैंने किसी का घर तो नहीं तोड़ दिया, ये सारी चीज़ें चल रही थी दिमाग में. बट आफ्टर दैट शी स्टार्टेड लिविंग वेरी गुड लाइफ. उन्होंने फिर अपने घर से भी सेपरेट होकर अपनी दोनों बेटियों के साथ में शी इज़ डूइंग वेरी गुड राइट नाउ. और भी कुछ काम चालू किए. अभी वो दूसरों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है अंडर हर सेल्फ. तो दिस इज समवेयर आई फील प्राउड ऑफ बीइंग इन दैट पोजीशन कि किसी भी तरीके से अगर मैंने किसी की हेल्प कर पाई और वो उस लाइफ से बाहर आ पाए, एंड नाउ शी इज़ गिविंग अपॉर्चुनिटीज़ टू फीमेल लाइक हर. तो ये एक स्टोरी थी दैट इंस्पायर्स मी अ लॉट कि भाई किसी भी सिचुएशन से यू कैन कम आउट any time. Like there will be a power that will be like coming with you. Yes, that's so inspiring and that's so amazing to know. और ऐसे सिचुएशन में ना लोगों को सिर्फ एक रे ऑफ होप और यू कैन से अ हेल्पिंग हैंड दे नीड, और बस उनको खींच के बाहर निकाल दो. दे हैव सच ह्यूज एम्पल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल इन देयर सेल्व्स, जो कि यूटिलाइज हो पाता है जब उनको प्लेटफॉर्म मिल जाता है. नहीं तो फिर ऐसे लाइफ्स में तो कई सारी वॉइसेस दब जाती हैं. कई लोगों की कहानी तो अनकहीं से निकल जाती है, पता भी नहीं चलता है कि क्या होता होगा उनके साथ. बस दे आर मेंट टू सैक्रिफाइस because good women sacrifice according to the society. So moving ahead, networking के बारे में लोग सोचते हैं कि ऐसे तो नेटवर्किंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर इन टुडेज बिजनेस वर्ल्ड, लेकिन लोगों को लगता है कि बस कनेक्शन बना लेना या कॉन्टैक्ट बना लेना इज नेटवर्किंग. सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज मीनिंगफुल नेटवर्किंग एंड हाउ डू यू प्रैक्टिस इट इन योर लाइफ? See, I'm in one community where it is said your network is your net worth. Like it is very true. When I started doing networking, मुझे ये फील हुआ कि देखो, आप आते हो खाली हाथ, आप जाते हो खाली हाथ. वॉट यू अर्न इज पीपल अराउंड यू, गुड पीपल, गुड कम्युनिटी अराउंड यू. और वो बनाने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है. मुझे एक चीज़ फील होती है ना, जो मम्मी पापा बोलते हैं समाज समाज समाज, फॉर देम दैट इज़ देयर नेटवर्क, जिसके लिए उनको बहुत ज़्यादा सोचना. आई एम गेटिंग गूज़बम्स. जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं. फॉर मी दिस इज़ माई समाज, कि जहाँ जिनके बारे में मैं सोचती हूँ, आई एम सिटिंग, आई एम putting myself into a community where business people are there only.
मैं बहुत ज़्यादा सोचूंगी कि वो क्या सोचता है मेरे बारे में, वो क्या करता है मेरे बारे में. दिस इज़ द समाज दैट आई हैव क्रिएटेड फॉर माई सेल्फ, क्योंकि मुझे इन्हीं के साथ आगे बिजनेस करना है, इन्हीं की हेल्प से मुझे आगे जाना है. और ये मैं इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि आई हैव सीन दीज थिंग्स. पहले जब व्हेन आई एम नॉट फ्रॉम रायपुर इटसेल्फ, जब मैं यहाँ आई हैड नो वन टू सपोर्ट मी फॉर आइदर फॉर माई बिजनेस और एनीथिंग. इफ अगर कुछ हो जाता है, भगवान ना करे कुछ हो जाता है, तो मैं किसे कॉल करूँगी. बट जब धीरे धीरे मैं कम्युनिटीज़ में जाना चालू की, इवेंट्स में जाना चालू की, लोगों से मिलना चालू की, जस्ट शेयरिंग एन इंस्टाग्राम अकाउंट और देयर व्हाट्सएप नंबर कैन हेल्प यू आउट. मतलब अभी भी ऐसा होता है. टुडे इटसेल्फ आई गॉट अ कॉल, उनको कुछ होर्डिंग्स वगैरह की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने उनको सॉल्व करके दी कि ऐसा ऐसा होता है. सी आई डू नॉट डू डायरेक्टली, थर्ड पार्टी होती है. आई डू नॉट ओन होर्डिंग्स और यूनिपोल्स, बट आपको मैं थर्ड पार्टी से कनेक्ट कर देती हूँ इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू पे मी सर्विस फीस. तो दिस इज़ हाउ दैट पर्सन नोज कि हाँ मैं इस फील्ड में हूँ, तो वो मुझे बोल सकते हैं इसके लिए. यही चीज़ आगे जाके मेरे भी काम आ रही है. मैं टेक सेक्शन में फंसती थी, इसी नेटवर्क ने मुझे हेल्प किया. नाउ देयर इज़ वन पर्सन हु इज़ सॉल्विंग आउट ऑल माई अकाउंट्स प्रॉब्लम. मुझे रिक्रूटमेंट में दिक्कत हो रही है, देयर इज़ वन पर्सन हु इज़ हेल्पिंग मी आउट इन रिक्रूटमेंट थिंग्स. दे आर हैविंग सच कंपनीज. अब इसमें क्या होता है ना कि आप जब लोग से मिलते हो, आप उनके बारे में जानते हो, लोग आपके बारे में जानते हैं. किसी भी मौके पे आप अगर फंस रहे हो, दीज आर द पीपल हु यू कैन कॉल. क्योंकि हम लिविंग लाइक फार फ्रॉम आवर फैमिली, हम वो फैमिली या वो समाज तो बाहर छोड़ आए, बट अभी जो आगे के समाज है, जो हमारा सराउंडिंग है, हमारा नेटवर्क ही है. और जितना ज़्यादा आप लोगों से मिलोगे, उतना ज़्यादा आप पर्सनली एंड प्रोफेशनली ग्रो कर पाओगे. दिस इज़ माई थिंग. एंड समवेयर आई फील कि एक स्माइल के साथ मिल लो, दिस इज़ हाउ यू बिकम अ फ्रेंड विद दैट पर्सन, और जस्ट अ नोन पर्सन जो एक कॉन्टैक्ट लिस्ट में आ सकता है, हु कैन हेल्प यू आउट, और दैट पर्सन कैन लाइक बी योर फ्रेंड इन सम टाइम. सो जनरली लोग ना बहुत सारे प्रॉब्लम से डील करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ में, लेकिन वो कम्युनिकेट किससे करेंगे? अभी तो ऐसा होता है जब करियर्स फ्लरिश होने लगते हैं तो फ्रेंड्स भी दूर हो जाते हैं. तो वी जस्ट नीड लाइक माइंडेड पीपल, एज यू राइटली सेड कि बस एक स्माइल कर दो एंड द पर्सन इज कंफर्टेबल विथ यू, एंड दैट इज ऑल अ पर्सन नीड इन योर लाइफ. स्पेशली इन दिस जनरेशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रॉमा चल रहा है. हमारे पुराने जनरेशन में वहाँ पे तो जनरेशनल ट्रॉमा चल रहा था. सो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पेशेंस होता था हमारी मम्मी लोग के टाइम पे, बट वी आर लाइक कि वी हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी, वी शुड एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी. और लाइक माइंडेड पीपल के साथ वाइब भी बहुत अच्छी जमती है. सो कम्युनिटी में रहना और नेटवर्किंग बहुत ही नेचुरल फिनोमिनन है. देयर इज नथिंग लाइक यू हैव टू फॉलो अ सर्टेन वे और अ सर्टेन फॉर्मूला. There is no script to be a friend. Yeah. Exactly. That has to be very natural, and that is. So, moving ahead, जैसे बिजनेसेस को आपने नोटिस किया होगा कि काफ़ी बिजनेसेस होते हैं जो बहुत अच्छा प्रोडक्ट और बहुत अच्छा सर्विस हमें ऑफर करते हैं, बट डिस्पाइट ऑफ दैट वो अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं बना पाते मार्केट में. तो व्हाट डू यू थिंक दैट दोज बिजनेसेस आर लैकिंग समवेयर, और उनको क्या चेंजेस या क्या इम्प्रूवमेंट्स करने चाहिए? सी अगर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर गुड, यहाँ पे ना वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक बिजनेस में जो देखी जाती हैं. प्रोडक्ट और सर्विस अच्छा है तो 2-3 चीज़ें काउंट होती, क्या आप अपनी टारगेट ऑडियंस पे रीच कर पाए. सी अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर तरीके का शैम्पू यूज़ करती हूँ, एक बहुत अच्छी कंपनी वो शैम्पू बना रही है, बट मुझे उस कंपनी के बारे में पता ही नहीं है, तो मैं कैसे वो शैम्पू बाय करूँगी? सो दिस इज़ द वन थिंग, क्या आप अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुँच पा रहे हो? और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्या आप क्या कहना चाहिए मुझे, आप तैयारी के साथ उतरे हो. सी बिजनेस में आते ही आपकी सेल्स होने लगे, दिस इज़ नॉट द व्हाट शुड आई से प्रैक्टिकल थिंग टू थिंक अबाउट. राइट, आप बिजनेस में आ रहे हैं, आपको एक बैकग्राउंड में सपोर्ट की ज़रूरत है. आइदर आप खुद का मनी रखिए, आइदर आप लोन का रखिए, आइदर आप जनरेशनल मनी रखिए, जो भी रखिए, बट एट द एंड आपको पैसे लगाने पड़ते हैं बिजनेस में. या तो आप एक ऐसा लूप रेडी करिए कि जैसे ही आपका सामान बिक रहा है, जो भी सर्विस हो, प्रोडक्ट हो, जो भी आप सेल आउट कर रहे हैं, उससे वॉट एवर यू आर अर्निंग आपको उसको दोबारा अपने बिजनेस में डालना है. समटाइम्स इट हैपन्स कि लोग बैक एंड सपोर्ट के साथ में नहीं आते हैं. उनको दिखता है कि हाँ धीरे धीरे चीज़ें बढ़ तो रही है, बट अब उनके पास में बैंक अकाउंट पूरा खाली हो चुका है. जब उनको एक किक की ज़रूरत थी, उस वक्त अब उनके पास किक के लिए पैर ही नहीं बचा है. तो दिस इज़ द थिंग कि आपको पूरी प्लानिंग के साथ आना पड़ेगा.
एटलीस्ट आपको मिनिमम 6 मंथ का पैसा आपके पास होना चाहिए। एक भी प्रोडक्ट नहीं बिका, आपकी एक भी सर्विसेज बाहर नहीं गई, उसके बाद भी आप अपने एम्प्लॉयज़ को और अपनी जो प्रैक्टिकल जो खर्चे हैं जैसे रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ये सारी चीज़ों के खर्चे आप निकाल पाएँ। अगर 6 महीने का बजट लेके आ रहे हो तो डू ट्राई कि आप 6 महीने के अंदर इतना अच्छा अपना बेस क्रिएट करो, इतना अच्छा अपने प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट करो कि लोगों से आपकी सेल्स चालू हो जाए। मतलब 7वें महीने के लिए आपके पास दूसरे तीसरे महीने तक पैसे आने लगे। मतलब यू हैव प्लान फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। ये बेसिक चीज़ें होती है। उसके बाद तो फिर बहुत सारी चीज़ें रास्ते में आती है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, फाउंडर्स के बीच में आपस में नहीं बन रही है, उसकी वजह से बिजनेसेस ख़राब हो जाते हैं। तो देयर आर सो मैनी थिंग्स, बट प्रैक्टिकल यही है, आप तैयारी के साथ आओ और आप अपनी टारगेट ऑडियंस तक रीच आउट करो। ये 2 चीज़ अगर आपने क्रैक कर लिए तो यू कैन ग्रो। Exactly. अभी तो टाइम ही सोशल मीडिया का है। True. यहाँ पे तो लोगों को रीच आउट करना बहुत ही ईजी है। मतलब बोलते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है। ट्रू, बहुत ज़्यादा सही है ये चीज़। एग्जैक्टली। या तो अगर आपके पास टैलेंट है तो आपका बिजनेस ग्रो होगा वर्ड ऑफ माउथ से। अगर आपके पास टैलेंट नहीं भी है तो अगर आपने अच्छा खासा उसको पुट फोर्थ किया, अच्छा खासा शोकेस किया, तो वो वैसे ही ट्रेंड में आ जाएगा। हाँ, बट इसमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी, अभी एक भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं बची जिसका कंपटीशन नहीं है। एग्जैक्टली। यू विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद समथिंग डिफरेंट दैट नो वन इज डूइंग। तो वो चीज भी हमें बीच में डालनी पड़ती है, दैट आई फॉरगॉट टू मेंशन। हाँ, एक यूएसपी तो होना ही चाहिए अपना कुछ अलग। सो तो आप जैसे बिजनेस को भी कर रही हैं हैंडल और साइमल्टेनियसली आप सोशल इनिशिएटिव्स भी ले रही हैं, तो हाउ आर यू एबल टू मैनेज बोथ ऑफ देम एंड हाउ आर यू एबल टू क्रिएट अ बैलेंस? मुझे ये दूर से आता हुआ दिख रहा था। आई एम नॉट क्रिएटिंग अ बैलेंस। एक्चुअल में समटाइम्स इट हैपेंस कि भाई मैं से अपने बाल नोच लूँ, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। See, there are a lot of things that is happening around you in daily basis. As I have already mentioned, I am not living with my parents, though I want them to settle here. Like, आ जाओ यहाँ पे, आप सब कुछ अब यहाँ कर लो. But ये होता है ना कि आपसे चीज़ें मैनेज नहीं होती. You started in the morning and I don't know when I am going to end today. ये चीज़ें होती हैं और इस बीच में मोटिवेशन बहुत ज़्यादा डाउन होता है. See, if you are not having like your parents with you to support you mentally कि हाँ भाई तुम्हारे ऊपर कोई है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउन फील होता है. दो आप जब देखते हो कि someone is earning because of you तो वो खुशी आती है, वो एक पीस मिलता है आपको, बट वो चीज़ इनफ नहीं होती लाइफ जीने के लिए. कोशिश मैं यही करती हूँ कि आई कैन बैलेंस माई लाइफ विद लाइक एनीथिंग दैट आई डू. आइदर सी मुझे सोना बहुत पसंद है, जब मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा होता है ना, मैं सब चीज़ बंद करके सो जाती हूँ. आई फील कि वो रीसेट बटन है मेरे लिए कि मैं अब जब सो के उठूँ तो नाउ आई कैन थिंक अबाउट इट. क्योंकि समटाइम्स इट हैपेंस कि आपको ना सोचा भी नहीं जा रहा है कि क्या चल रहा है आपके आसपास. बस एक फ्लैश बटन दबा दो, हाँ, सो जाओ, सो के उठो फ्रेश माइंड से. एटलीस्ट आप कुछ सोच तो पाओगे. दूसरी चीज़ आप कुछ खा लो क्योंकि भूख में भी कुछ सोचा नहीं जाता. भूख नहीं भी लग रही होती तो खाने के बाद एटलीस्ट थोड़ा सुकून मिलता है. ये 2-3 चीज़ें जो एकदम नेचुरल एंड दिस इज समवेयर रिलेटेड टू साइंस एज वेल, वो मैं करती हूँ. बट आई फील कि इसके लिए आपकी टीम का बहुत अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. See, you think a lot about your team, but if thing is not accountable enough, तो वहाँ पे जो एक फ्रस्ट्रेशन आती है दैट इज़ द बिगर वन. तो आई फील कि अगर आप अपनी टीम को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करोगे, इफ़ यू आर नॉट फोकसिंग इन सेवरल पॉइंट्स, आपकी टीम वो चीज़ मैनेज कर ले रही है. सो यू विल बी समवेयर 10-20% तो आपको छूट मिलती है कि आप दूसरे साइड ऑफ योर लाइफ को आप मैनेज कर पाओ. एग्जैक्टली. टीम वर्क तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. इन दिस टाइम कितना भी हम लोग के अंदर मोटिवेशन आ जाए, बट अकेले चलना इज़ लाइक वेरी डिफिकल्ट. अगर कोई साथ में हो तो थिंग्स बिकम ईजियर. मेंटली तो ईजियर हो ही जाता है एटलीस्ट चीज. मतलब देखो, आपको पता है कितनी भी बड़ी टीम हो, सर्टेन थिंग्स आर देयर जो आपको खुद ही करना पड़ेगा. बट एटलीस्ट फॉर अ सेवरल टाइम लाइक 12-15 आवर्स आपको रहता है कि कोई तो कर लेगा, कोई तो कर लेगा, झक मार के लास्ट में आपको ही करना है. तो ये चीज़ें होती है डेली लाइफ एंड दिस इज समवेयर आई फील दिस इज द लाइफ. सब कुछ अगर ईजी हो जाता है तो देयर इज नो सेंस टू लीव एंड मज़ा भी नहीं आएगा. यस एग्जैक्टली. फिर क्या ही मज़ा है. तो जनरली हम देखते हैं सोशल मीडिया पे लोगों की सक्सेस स्टोरी काफ़ी सुनने को मिलती है और देखने को मिलती है, लेकिन कभी भी हम लोगों ने जनरली फेलियर्स को नहीं देखा है, फेलियर्स को ओवरलुक किया है. बट कभी
ना कभी सक्सेसफुल बनने के बाद people get back to the time where they have failed so as to derive motivation from that point in time जो प्रेजेंट पे यूज कर सके. तो ऐसे आपने भी अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स फेस किए ही होंगे. सो आपने उन चीज़ों को कैसे टैकल किया, आप कैसे ओवरकम किया और क्या लर्निंग आपने गेन की उससे? मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं चीज़ें बताऊँगी. सी व्हेन वी स्टार्टेड, आई एंड माई को फाउंडर, हम 2 लोगों की हमारी टीम, मतलब मैं और वो, बस हम दोनों ही काम कर रहे हैं. हमने जब टीम बनाना चालू किया, व्हेन वी गॉट एन ऑफिस, कि हम रेंट पे अब इस ऑफिस पे रहते हैं, देयर वॉज सर्टेन टाइम कि हमें किसी वजह से ऑफिस छोड़ना पड़ा. सी बहुत सारी चीज़ें थी, नॉट ओनली फाइनेंशियल. हमने एक रेसिडेंशियल प्लेस में अपना ऑफिस शिफ्ट किया. दैट वॉज समवेयर आई वॉज फीलिंग कि क्या सब कुछ बंद करना पड़ेगा. दो उस वक्त भी 8 लोगों की हमारी 8 या 10 लोगों की हमारी टीम थी. दिस वॉज वेरी गुड. मतलब लोग सपोर्टिव रहे कि हाँ हम घर से काम करने को रेडी. हमने पूरी कोशिश की घर में भी उनको वो ऑफिस वाली फीलिंग दे प्रॉपर. हम ज़मीन में बैठ के सारे लंच करते थे, बट मज़ा बहुत आता था. तो वो चीज़ें हमने की. उस वक्त मुझे लगता था कि यार क्या होगा, कैसे होगा. हमारा मोटिवेशन इतना डाउन था कि वी वर नॉट एबल टू पिच एनी न्यू क्लाइंट. आते भी थे तो वो हमारा ऑफिस सेटअप देख के उनको लगता था कि ये लोग क्या ही काम करेंगे. उस वक्त हमने एक टफ डिसीजन लिया था कि चलो कमर्शियल प्लेस में शिफ्ट होते हैं. हमने, मी एंड माई को फाउंडर, हम दोनों ने अपनी जो खुद का जो बैकअप मनी था वो उस ऑफिस में डाला कि जैसा भी होता है ये सेटअप करते हैं, लेट्स सी क्या होगा. जो होगा हमको आता है, मतलब शुरू से शुरू करना हमें आता है. वी हैव मेड दिस खुद से, तो हम लोग कर लेंगे. सो हमने वो एक डिसीजन लिया. दैट वॉज द टफेस्ट दैट टाइम कि भाई इतना ही बचा है, लेट्स सर्वाइव. और टचवुड दैट ऑफिस वॉज वेरी गुड फॉर अस. लाइक बहुत फला फुला चीज़ें बढ़ी, क्लाइंट्स आए, वो ऑफिस मतलब सबको ऐसा लगा कि हाँ दे कैन परफॉर्म वेरी गुड. दो इट्स बीन 9-10 ईयर्स आई एम इन दिस इंडस्ट्री, बट उससे ज़्यादा ना लोगों को दिखावा समझ में आता है कि इनका कितना बड़ा सेटअप है, इनकी कितनी बड़ी टीम है. वो वहाँ से लोग जज करते थे. और अभी हम उसी ऑफिस में हैं. टीम हैज़ ग्रोन टू दिस अमाउंट और चीज़ें अच्छी जा रही है. बट जब मैं पीछे देखती हूँ ना, वो वाली चीज़ जब याद आती है यार, वो रेसिडेंशियल प्लेस में हम ज़मीन में बैठ के काम करते थे. ठीक है, बहुत ज़्यादा मैंने एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं अर्न किया होगा, मेरे पास एकदम बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है अभी, बट लिटरली आई हैव वॉन इन लाइफ अभी तक. तो मतलब भाई मेरे पास ये ऑफिस है. आई कैन tell my family, I can tell the society that I have made such things कि मतलब आप ये नहीं बोल सकते I am a failure. उस टाइम में मुझे फील होता था कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बट टच वुड, इफ आई कैन पे आउट टू सेवरल पीपल, आई एम डूइंग समथिंग इन माई लाइफ. एंड उस फेज से निकल के मैं यहाँ आई हूँ. मैं डायरेक्ट यहाँ नहीं टपकी हूँ. सो या सक्सेस एंड फेलियर आर लाइक साथ साथ चलने वाली चीज़ें हैं. अब तो ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीज़ में भी ऐसा लगता है कि मैं फेल हो गई, बट दीज आर द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ. और इसके बाद ही जब वो छोटी छोटी खुशियाँ आती हैं ना, तो वो फीलिंग आती है. नहीं तो आप तो एकदम नॉर्मल हो जाओगे, लाइक यू विल बी नॉट फीलिंग हैप्पी अबाउट एनी थिंग. सो नथिंग विल बी एक्साइटिंग यू. तो ये चीज़ें आना लाइफ में ज़रूरी है, आई फील. यस, बोलते तो हैं लोग कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बट सबसे पहले वही करते हैं. वही होता है बहुत ज़्यादा. जो एग्जैक्टली लाइक आई प्रीवियसली सेड, जो दिखता है वो बिकता है. लोग टैलेंट एक्सप्लोर करने की जगह देखते हैं कि वो कैसा दिख रहा है एंड वहाँ पे क्या सर्विसेज मिल रही हैं और काम कैसा भी रहे. बस दिखावा वाला चीज़ इम्पोर्टेंट रहता है. हाँ. और जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट करने का वो अलग ही उसके लिए गट्स चाहिए रहता है. एंड सो मतलब कुडोज टू यू फॉर दैट. और अगर कोई बंदा ना अगर जीरो से स्टार्ट कर रहा है और उसको छोटे छोटे भी विंस मिल रहे हैं ना, तो वो उस चीज़ को भी सेलिब्रेट करेगा. जो अगर किसी एस्टैब्लिश पर्सन ने ऑलरेडी कभी स्ट्रगल नहीं किया होगा, उसको ये चीज़ कभी समझ में नहीं आएगी. एक वो चीज़ है ना कि फॉर सम पीपल, मतलब जो ऑलरेडी जनरेशनल वेल्थ के साथ में आ रहे हैं, वो लोग जिस चीज़ को बोलते हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, एक्चुअल में हम वहाँ तक पहुँच के खुश हो रहे होते हैं. क्योंकि उन्होंने वो लाइफ तो देखी ही नहीं है जहाँ पे ये चीज़ें बनाई जाती हैं. उनके पास तो प्लेटर में अपॉर्चुनिटीज आ रही है. सो लीव दैट थिंग अपार्ट. वो उनसे वो 1 से 100 जाते हैं, हम 0 से 100 जा रहे हैं.
So that is so nice, and I had such an amazing conversation with you tonight. So let's move forward towards the most interesting segment of the show, that is the rapid fire round. I have some questions for you, and as you already know, rapid fire round में you have like two options. You have to take one, जो भी आपके दिमाग में सबसे पहले click करता है. So are you ready? Yeah, sure. मजा आएगा. So yeah, so let's go. So tea or coffee? Coffee. Morning person or night owl? Night owl, always. मत उठाओ सुबह. Okay. So who is your favorite leader? Leader, you can say Dr. APJ Abdul Kalam. Oh. Like, Yes, No one. absolutely. Yeah. Amazing person yours. So, and which is your favorite book? see, I mostly read fictions. So there is one book by the name बेहया. और मैंने आई गेस अगर मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी होंगी ना उसमें 90% दैट इज ऑन वुमेन्स लाइफ. तो वो मुझे बेहया एक बुक है, आप भी पढ़ना, हिंदी में बहुत Yeah, अच्छी sure. स्टोरी है. दिस इज वेरी गुड बुक. Okay, sure, I'll give it a try. So, and what is your favorite habit apart from sleeping? Okay, ओके, आई लव प्लांट्स. plants. यस. Okay. मतलब गार्डनिंग इज समवेयर. मैं बोलूँगी कि एक मुझे घर में भले वो 10 बाय 10 का चाहिए, बट एक पर्टिकुलर गार्डन चाहिए फॉर मी, जिसमें मतलब इफ आई एम नॉट फीलिंग गुड आई जस्ट गो टू द प्लांट्स. Oh, that's so interesting. Like that's so sweet as well. मेरे ऑफिस में सिर्फ 2 ही कलर है. वाइट, जो पूरे दीवार है, पर्दे सारे वाइट है, फर्नीचर वाइट है, एंड द Green. सेकंड वन इज ग्रीन, जो पूरे प्लांट्स है. That's so nice. So, what one word would you use to describe yourself? एम्बिशन. Okay, very, very true. And what is success to you? पीस ऑफ माइंड. Exactly. Same here. So success, मेरे हिसाब से, it gives you satisfaction, and motivation failure gives you motivation. But there is one twist when you talk about the satisfaction. आप जैसे जैसे कोई अचीवमेंट लेते हो ना, यू आर नॉट सेटिस्फाइड. नाउ यू नीड टू अचीव Yes. बिगर थिंग्स. Yes. तो वो More चीज़ें thirst. हैं. हाँ, बट द थिंग इज कि आपने जो अचीव किया, इफ़ यू हैव पीस विद दैट अचीवमेंट, कि हाँ मुझे ये बहुत दिनों से चाहिए था. दैट कैन बी एनीथिंग. मतलब समटाइम्स इट हैपन्स. मुझे स्टेशनरी आइटम्स बहुत पसंद है, तो मैं कुछ भी ऐसे परचेस करती हूँ आर्ट से रिलेटेड या स्टेशनरी से रिलेटेड, तो वो मुझे पीस ऑफ माइंड मिलता है. एंड आई फील सेटिस्फाइड कि भाई मैंने इतना वन किया कि मुझे किसी का मुंह नहीं देखना पड़ रहा है ये पेन या ये आर्ट बुक लेने के लिए. सो दैट इज ऑल्सो पीस ऑफ माइंड फॉर मी. Yes, that is success in its own self that you're True, talking true, about. true. Yeah. So yeah, that's it for today. So I had a really fun conversation with you, and I hope कि आप आगे जाके बहुत ज़्यादा successful और बढ़ो, आपका vision और expand हो, लोगों तक पहुँचे, and you touch new heights of success in your life. So thank you so much for coming to this show. Thank you so much for your words, and it was really very good conversation with you. Same. And looking forward to more conversations like Yes, this. exactly. I would be saying I want something to build for Amanat Foundation कि वो सारी females इस chair पे बैठे मेरी जगह, and you are taking interviews of them. Yeah, sure. Someday for sure. I'll also wait. Yeah. So thank you so much. This is Ananya signing off. We'll see you in the next episode. Till then, stay tuned and stay happy. Bye-bye. Can we do it?